Well, the news from the toss is that Dera Murad Jamali have won the toss and they have opted to bowl first. The team would have their hopes very high regarding him. Mohammad Akram is the name. Please remember that because this boy has some talent. But what he did needs repetitions, more and more frequent to get him right up there. He has now shown the glimpses of talent, which not many show at this level. And this opportunity is something that not many boys get. So Salim Mal will be the bowler. We shall see what sort of a plan is set for Akram because he mostly took advantage of the shorter length. So will DMJ bowl fuller or change the line and length to just not allow those batters to play at their strengths? We shall see all that. Some exciting action coming up. Right, almost everything is in order. Waleed Yaqub says, let's go, gentlemen. There's something in the previous game where Hyderabad were very smart, especially with the new ball. The point you just mentioned about the length. Oh no, they played it straight to mid-off. That's disappointing for Akram. Wanted to go big, but could only manage to hit it straight to the fielder. The very visible difference being a fullish length ball, allowing the ball to swing and asking the batter to play this ball where he couldn't use the pace. He had to create his own timing, and this time he tried to lift it over mid-off and couldn't time it, couldn't middle it. Illegal delivery, no problems there. And bottom of the bat, an easy catch to mid-off. So done and dusted. The man with the fastest 50 is gone thick and fast back to the dugout. 3 for 1 Bahawalpur. That will be a boundary. This is where you need to avoid that leg side-ish runs given by the umpire off the edge for 4. Once again down the leg side, lucky that oh no, this in fact very lucky is the bowler. A faint edge that goes straight to the keeper. So this is a bonus. So this goes to a ball which deserved to go to the boundary. In fact, off the bat has gone in the hands of the keeper. Yeah, what a start. What a brilliant start for Dera Murad Jamali. He's smiling it off. Maybe he is not convinced with the decision, but what's done is done. He's been given out by Rashid Riaz. Let's have a look. Took his time. Really can't tell from here. Wicketkeeper did appeal for it. Half-hearted appeal. He's not really convinced even the wicketkeeper. So this will have to go back, scoring 6 runs, 7 for 2. Very good attack of Sialkot team. We'll come back to it. This is wonderfully driven all along the ground, through the covers, gets to the boundary, and at last, a good conventional cricket stroke. Opportunity taken, quite simple. Doesn't get any easier than this for the bowler. Then his follow through takes the catch and ends the inning of Umair. Are we in for another game where a lesser side is going to topple a team who has just won a game against a bigger side? Farhanullah this time the successful bowler, and the benefits of pitching the ball up and just once again
Poor technique, just closing the face of the bat way too early, trying to go across the line on the onside. Top edge lobs an easy catch to the bowler. Mohammad Umair gone for 4. Bahawalpur further trouble. They are in 18 for 3. Into extravagant shots like this. Beautifully played. Straight down the ground by Imran. Yeah, this is Imran Randhawa. Gets one in the slot. You have to extract somebody's mind to know where he's coming from. Another boundary, just straying down the leg, Shahid. Imrani, all he had to do was get some bat on it. And get into the T20 format. It is a huge appeal and the finger is raised. Another one bites the dust. Bahawalpur in further trouble. The 4th wicket has gone down. Not many runs on the board. Start of the 9th over and more bad news for them. Yeah, the rewards for consistent and disciplined bowling. Again, just around that off stump, good length, backing up Imran. He had enough the previous over. He got one boundary. He wanted to accelerate. He's gone on 14, the skipper. 4 down on 38. बॉल कर दिया, शानदार डिलीवरी. बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि ब्रेक के बाद मुश्किलात होती हैं बैटर्स के लिए और ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे भावलपुर के साथ देख रहे हैं और यहाँ तो मुश्किलात शुरू से ही जारी हैं. ये 5वीं विकेट गिरी है 42 रन के स्कोर पे. कोई मसला नहीं है यहाँ पे. फ्रंट फुट का दूसरे एंड पे मसला है, बड़ा मसला है भावलपुर के लिए. पहला बॉल खेल रहे हैं ब्रेक के बाद. नजरसानी करनी होगी इस चॉइस पे. शायद मिरानी 3 रन बनाकर वापस जाएंगे. 42 पे 5. अगले ही मैच में आप बिल्कुल ढेर हो जाएं, ये थोड़ा नामुनासिब है. शे अच्छा शॉट है, 4 रन देके जाएगा. फील्डर के टांगों के दरमियान से जाते हुए चौका हासिल किए. टिपिकल कदमों का इस्तेमाल और गेंद वहां जाएगी जहां पर दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं है. काफी बड़ा छक्का था ये, बिल्कुल बैट के दरमियानी हिस्से से लगता हुआ ये स्ट्रोक. 6 रन का अंपायर का सिग्नल स्कोरर की जानिब के लिए तैयार रहना पड़ेगा. कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन फील्डर बहुत बाहर खड़े हैं. 1 ही रन बनेगा. चलिए कोई बात नहीं, तोहफा दीजिए. अपने भावलपुर के भाइयों को तोहफा दिया गया है 4 रन की सूरत में. बहुत ही कैजुअल अप्रोच जो कि शायद इस लेवल पे ऐसा नहीं होना चाहिए. आउट हो जाएंगे. बहुत ही शानदार बॉलिंग, बहुत स्मार्ट बॉलिंग फाद की जानिब से. परख लिया था कि कदमों का इस्तेमाल करेंगे. दूर फेंका, स्लो फेंका और विकेट कीपर के कॉम्बिनेशन के साथ ये विकेट हासिल की है कप्तान फहद ने. ये आइडियल गेंद थी. ऑफ साइड ऑफ स्टंप, थोड़ी फ्लाइट थी. डिसीव हो गए फ्लाइट्स में अफजल और बड़ी शॉट खेलने के लिए गए थे. उन्होंने काफ़ी ऐसी शॉट्स पहले ट्राई की थी लेकिन इस मरतबा कामयाबी उनका मुकद्दर नहीं बनी. इस मरतबा वो अपनी विकेट खो बैठे और ये एक और धचका है भावलपुर को. अगर हम ये देखें फ्लाइट डिलीवरी, कोसों पीछे थे. एक और जगह से देखेंगे, ये एक बेहतर मंजर है. चलिए, कदमों का इस्तेमाल किया. गेंद कहीं था, पाँव कहीं थे, नज़र कहीं थी और विकेट कीपर चौकस से उन्होंने गेंद को हासिल किया और साथ ही धे मारा विकेटों पर. तो इस तरह अफजल का वापस लौटना होगा. 66 पर ये एक और विकेट गिर चुकी है और ये है विकेट नंबर 6. कोई आसान काम नहीं था अफजल के लिए. वो विकेट पर टिके रहे थे और ये देखिए कितने दूर चले गए थे और कितना दूर जाएंगे. लीजिए बड़ी जल्दी. अच्छा क्विक वर्क विकेट कीपर का. जहाँ बहुत हैरान की हुई है कि काफी देर तक इंतजार करते रहे हैं इस आउट देने का. इनको तो खुद ही अपने आप को आउट दे देना चाहिए था जितना बाहर क्रीज से मौजूद थे. अली अफजल ने बनाए 13 रन. 66 रन पे 7वीं विकेट गिरी है भावलपुर रीजन की. बैक टू कॉम्स. तो अच्छी रौनक है बाहर और इस दौरान ये अच्छी कट है. इसमें 4 रन मिलेंगे और अम्मार की ये बेहतर कोशिश थी इस सूरत हाल में जब खाल खाल बाउंड्रीज लग रही हैं. बहुत तेज गेंद किया था एंगल के साथ, सीधा स्टंप्स के सामने खाया. बहुत आसान डिसीजन ये अंपायर के लिए और एक और विकेट हासिल की डेरा मुराद जमाली ने. जी हाँ, एक और बड़े विकेट. आज कोई भी बैटर
टिक नहीं पा रहा विकेट के ऊपर और इसके बाद दीगर कामयाबियां हासिल की। बिल्कुल लीगल डिलीवरी, कोई मसला मसाइल नहीं। विद इन द स्टंप बॉल किया, सीधा थाई पैड पे टकराया और आउट। अली शब्बीर सिर्फ 4 रन्स बनाए, 7 विकेट्स गिर चुकी हैं 81 रन्स के मजमूई टोटल पर। फुल टॉस, फायदा उठा नहीं पाएंगे, फील्डर नीचे आ रहे हैं गेंद के और आसान कैच। मौका मिला था बाउंड्री लगाने का, लेकिन अजब उस शॉट पे कमांड नहीं रख पाए। 7वीं विकेट भावलपुर के लिए। लीगल डिलीवरी, फुल टॉस बॉल था, कवर के ऊपर से मारना चाहते थे, बॉटम ऑफ द बैट लगा, बॉल हवा में गई, शॉर्ट कवर के खिलाड़ी का बड़ा शानदार कैच, बड़ा अच्छा जज किया, उस कैच को किया मुकम्मल। मोहम्मद अजहब 7 रन बनाने के बाद आउट। 19 ओवर के अख्ताम पर भावलपुर 94 पर 8। क्रीज में डीप गए और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाया है और ये 4 रन। अच्छी स्ट्राइक, अच्छी प्लेसमेंट बासित की। 4 रन हासिल किए। फिर क्रीज में डीप, लेकिन इस मर्तबा कोई गलती नहीं की सलीम ने। शानदार यॉर्कर और बासित ने अपनी विकेट गंवाई। मजीद रन्स की तलाश में बासित अपनी विकेट दे बैठे। सलीम की एक और कामयाबी। फ्रंट फुट इस वक्त देखा, कोई मसला मसाइल नहीं। लीगल बॉल, डेडली यॉर्कर, इसको रिवर्स खेलना चाहते थे और बॉल सीधा स्टंप्स में। बासित 4 रन बनाने के बाद आउट। भावलपुर 103, 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आखिरी गेंद, आखिरी विकेट। बीट किया और इसी वजह से ग्लव्स उतार के खड़े थे शुएब। इसके साथ ही भावलपुर की इनिंग्स खत्म हुई। 104 का हदफ मैनेज कर पाए हैं। बहुत शानदार बॉलिंग डेरा मुराद जमाली की। नए गेंद्स के साथ फास्ट बॉलर्स ने डिलीवर किया, बीच में स्पिनर्स ने अपनी जिम्मेदारी संभाली और डेथ बॉलिंग भी शानदार रही। भावलपुर के बल्लेबाजों को सर उठाने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया और डिसिप्लिन्ड बॉलिंग टॉस जीत के पहले जो डिसाइड किया था उसी के हिसाब से एग्जीक्यूट किया। खुश दिखाई दे रहे हैं डेरा मुराद जमाली के कप्तान और उनके दीगर बॉलर्स भी, कि उन्होंने आज बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है। 104 रन्स का हदफ है इनके सामने, जो कि ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होने वाला। बैटिंग कार्ड पर एक नज़र डालेंगे। अम्मार ने बनाए 39 रन, नुमाया रहे आज, लेकिन ये इनिंग्स कोई अच्छी नहीं है T20 के हवाले से। इमरान ने बनाए 14 रन और अफजल ने बनाए 13 रन। इसके अलावा कोई भी बैटर जो है वो डबल फिगर में दाखिल भी ना हो पाया। और भावलपुर रीजन ने बनाए 104 रन मुकर्ररा 20 ओवर्स में। टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया था और उस फैसले को बैक किया फरहानुल्लाह ने। 3 विकेटें हासिल की, 2 सलीम 2 तारिक ने, एक गई फहाद और सजाद के नज़र। लेकिन डिसिप्लिन बॉलिंग ने बार उन्हें फ्रूट्स जो हैं वो दिए, कामयाबियां दिलाते गए और इस वजह से 104 पे ही कंटेन कर पाए भावलपुर को।